गया again. गया 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 Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning. Good morning, Priya. Very good morning. Good morning to Good everyone. morning, everybody. रेड राइडिंग हो आज, क्या बात है ये रेड रेड कैप? Oh, Priya. Priya. हाँ. Priya. आज She's like Christmas Santa वापस आ Claus' गई. younger Yeah. sister today. She started with blessing me in the morning with the Santa Claus Good morning, hat. दीप्ति. Good morning. अभी Good दिखे हो आप? morning, Good ma'am. morning. Good है ना morning, प्रिया, तुमने everyone. मुझे इतनी लंबी ब्लेसिंग भेजी सुबह सुबह, तो आज तुम सांता एक्चुअली क्लॉज मैं की ना कैप औरों पहन को के. मतलब जो मुझे विश करता है ना तो उसको मैं भेज देती हूँ ब्लेसिंग, तो फिर साथ में आपको भी भेज दिया मैंने, अच्छा, बिकॉज यू थैंक आर यू Good द सो morning, मच. सोर्स प्रिया. मुझे भी भेज दो. Good मुझे उन morning, प्रिया. ब्लेसिंग्स की बहुत Good morning, जरूरत good है morning. आज. And Nutan, your sharing were amazing. Matlab, I Amazing. couldn't hear it in the morning, but at night I was listening. It was Yeah. really incredible. Yeah. Yes. The way she was saying. I think she's The working way very and hard the on herself. practices This he is was doing, She all of expressed that. very nicely. very nice, actually. Date-wise, what practices she did, short, crisp, meaningful, to the point, and there's been so much of an effort that you've done in yourself. I mean, that's commendable, actually. Thank you so much for sharing. Thank Yeah. you so much, ma'am. Thank you, Dipti. So yeah, we continue with day 0, and so Ritu Khanna का कैमरा आज इसीलिए ऑन था क्योंकि she is the reader for us today. है ना मैडम? Yeah, good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So is your life magical? ये पढ़ के, so we'll finish the day 0 and then we'll start with day 1 from tomorrow. Hanji, please start reading. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of under the bottom line of undergratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we were unintentionally talking from ourselves. We are unintentionally taking from ourselves. The law of the law of attraction says that like attracts like. Be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. Yeah, so this talks about that is your life really magical कि जिंदगी में अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या कुछ एरियाज हैं, मे बी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं चल रही है बट रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी है. ठीक है, पैसे में कभी आ रहा है कभी जा रहा है, दैट मीन्स पैसे की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने की जरूरत है. रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, मतलब रिलेशनशिप्स हम बहुत अच्छे से रिश्ते निभाते हैं, हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं, मतलब अच्छी फीलिंग्स है रिलेशनशिप के लिए. हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, इसका मतलब है हमने कभी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया है या अपनी कंप्लेन हेल्थ की बहुत ज्यादा करी है. तो इस तरह से जो एरियाज हमको आइडेंटिफाई करना है दैट हमारी लाइफ में कौन से वो एरियाज हैं जो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं.
जो बहुत अच्छे नहीं चल रहे, इसका मतलब है कि वी हैव टेकन फ्रॉम देम। टेकन का मतलब है वी हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड, यानी कि हमने उन एरियाज में शुक्राना नहीं डाला हुआ है बहुत ज्यादा। तो कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं किया है तो आज से कर लेते हैं, है ना। जो चीज, तो हमको ये देखना है कि हमारी कौन कौन से एरियाज हैं जो बहुत अच्छे नहीं चल रहे। इसका मतलब है कि दोज एरियाज नीड मोर ग्रेटिट्यूड। ठीक है, करते जाओ, सही समय पे वो अनफोल्डिंग्स होके हमारे सामने आ जाएंगी एक बहुत अच्छे रूप में, बहुत अच्छे तरीके से। कभी कभी टाइम लगता है बिकॉज हमको पता नहीं है कि डेप्थ कितनी है, गड्ढा कितना ज्यादा खोदा हुआ है हमने नेगेटिव चीजों का या नेगेटिव थॉट से या कंप्लेन कर करके। अगर हम ये भी कर रहे हैं कि मुझे बहुत हाथों में दर्द हो रहा है, हाथ हाथ में दर्द हो रहा है, ये भी कंप्लेन होती है। ठीक है, सो ये इस तरह से हम सब ने बहुत गड्ढे खोदे हुए हैं ऑलरेडी, और कई कई गड्ढे बहुत डीप है, तो उनको भर रहे हैं ना हम धीरे धीरे। तो इसीलिए कुछ गड्ढे जल्दी भर जाएंगे, हो सकता है रिलेशनशिप के गड्ढे बहुत जल्दी भर जाए, हो सकता है हेल्थ में थोड़ा सा टाइम लगे, हो सकता है मनी का बहुत जल्दी भर जाए, क्योंकि पैसे को हमने बहुत अप्रिशिएट किया है, हमने बहुत सेलिब्रेशंस किए हैं, हमने लोगों को बहुत दिया है, मतलब उस तरीके से, तो वो पैसे हमारे पास उस रूप में वापस भी आ जाएंगे। तो इस तरह से जहां पे भी हम खड़े हैं, जो जो हमारे एरियाज हैं जहां पे हमारी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उन एरियाज में हमको ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। वैसे ये जो चैप्टर्स अलाइंड है वो इस हिसाब से हैं कि लाइफ के सारे एरियाज को ये कवर करते हैं, मतलब। लेकिन कुछ एरियाज हैं जिसमें हमको ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा थैंक यू बोलना पड़ेगा। और इस चैप्टर के एंड में वो सारी, मतलब जो ये किताब खत्म हो जाती है तो इसके एंड में पूरा समराइज किया हुआ है कि अगर आपको हेल्थ में चैलेंज आ रहा है तो आप ये सारे असाइनमेंट्स करो और रोज करो। अगर रिलेशनशिप में है तो रोज ये करो। अगर मनी के लिए है तो मनी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ अपनी। ठीक है, कहीं पे अगर बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग है, ग्रीड है बहुत ज्यादा कि बस पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, लेकिन उस हिसाब से खर्च नहीं करना है, ठीक है, तो वो पैसा आने का फ्लो, बिकॉज मनी को सर्कुलेट करना बहुत पसंद है अपने आप को। मतलब पैसा जब आता है तो वो निकलना भी चाहता है, तो सर्कुलेशन का प्रोसेस लगातार चलना चाहिए। लेकिन अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है और उस हिसाब से कम आ रहा है, इसका मतलब है मनी फ्रीक्वेंसी हमारी हिली हुई है थोड़ी सी। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। हमको ग्रेटिट्यूड पैसे के लिए, जब भी ग्रेटिट्यूड मतलब पैसा दो किसी को तो बहुत ब्लेस करके दो कि उसकी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। और अगर कोई चीज खरीदो तो उस दुकान को ब्लेस करो जो स्टोर है। अगर आप सब्जी खरीद रहे हो, फ्रूट्स खरीद रहे हो, तो उन लोगों को ब्लेस करके दो, पैसे को ब्लेस करो। सो इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज ऑलवेज द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू गिव, जिससे फर्क आता है। सो इसमें है, अगर कोई भी चीज जिंदगी में रिसीव करनी है तो उसके लिए पहले गिव करना पड़ता है। सो यही इस पूरे पूरे टॉपिक में ये लिखा हुआ है, that you have to give, you have to learn how to give, है ना। इसीलिए दान, दाएं हाथ से, दायां हाथ को दायां हाथ दान, वो दान के लिए होता है। सो इसीलिए खुले दिल से बहुत बड़ा जेनरस हार्ट करके आप दो, अपने आप आपके पास सारी वो चीजें आएंगी। जैसे अगर रिलेशनशिप्स के लिए थैंक यू बोल रहे हो तो अपने आप बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस चीज में अटेंशन और फोकस जाता है वो चीज हमारी लाइफ में एम्पलीफाई होनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से जब हम थैंक यू बोलेंगे रिश्तों को, पैसों को, करियर को, अपने बॉस को, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को, खाने को, अपनी हेल्थ के लिए, आप जिस सड़क पे चल रहे हो उस सड़क को थैंक यू बोलोगे, अपने आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एक सब्लिमल लेवल पे होना शुरू हो जाता है, एंड थिंग्स विल स्टार्ट अनफोल्डिंग लाइक अपने आंखों के सामने। एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको रेडिकल चेंज अपनी जिंदगी में देखना है, हम सबको देखना है रेडिकल चेंज। रेडिकल मतलब मॉन्यूमेंटल चेंज, बड़ा चेंज और जल्दी। रेडिकल का मतलब होता है बड़ा और जल्दी। अगर हमको कोई बड़ा चेंज देखना है अपनी लाइफ में या जल्दी से उसको देखना है, ठीक है, और जो करंट सर्कमस्टांसेस हमारे हैं जो भी हैं, अगर हमको उनमें बदलाव चाहिए तो हमको ग्रैटिट्यूड को न्यू वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड मेक इट योर न्यू वे ऑफ लाइफ। चाहे अच्छा लग रहा हो, चाहे नहीं लग रहा हो, चाहे जो भी चीज हो, मतलब जो भी चीज गड़बड़ चल रही हो, उसमें जबरदस्ती मैकेनिकली करो, फेक करना पड़े फेक करो, बट थैंक यू बोलना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। और स्पेशली जब लो मोमेंट्स एंड लो फेजेस ऑफ द लाइफ आते हैं उसमें ऑप्शन ही नहीं होता, है ना। सो यू हैव टू मेक, इफ यू वांट टू सी, सो रेडिकल चेंज हम सबको चाहिए, उसके लिए न्यू वे ऑफ लाइफ तो बनाना पड़ेगा हमको। सो दैट्स व्हाट इट इज। हाँ जी। The magic formula. Quote: Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Unquote. Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah, 1332 to 1406, scholar and statesman.
Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first, you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are to the life of your dreams. The magic formula. Point number one, deliberately think and say the magic words thank you. Point number two, the more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. Point number three, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law in 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. आवाज चली गई है। Ma'am, am I audible now? हाँ, मतलब if you practice gratitude, वो second line से पढ़ो आप। जी ma'am. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. ऋतु, आपको मेरी आवाज आ रही थी अभी? हाँ जी मैम. यस मैम, ऋतु की आवाज क्लियर है मैम। अच्छा, तो मेरे कनेक्शन में कुछ इशू है, यस मैम, आपके कनेक्शन का कुछ है ना? लो, बट ऑफ नहीं कर सकते अभी। हाँ, ठीक है, चलो अब आवाज आएगी तो मुझे बता देना। Yes, मुझे ma'am. एक्चुअली 2-3 बार ऋतु की आवाज चली गई थी, बट मेरे इस पे नोटिफिकेशन आ रहा है दैट माय कनेक्शन इज अ ग्लिच। ओके, सो द मैजिक फॉर्मूला, ब्यूटीफुल टॉपिक दिस इज। तो इसमें ये जो कोट है, नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो कोई भी ट्रेजर को खोलने की चाबी तो प्रैक्टिस ही होती है ना, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा पहले अपनी जिंदगी में। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, तीनों में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये धीरे धीरे हम ऐसे बन जाएंगे कि हमारी आदत पड़ जाएगी कि कोई भी चीज, मतलब अगर कोई भी ब्रेकडाउन है हमारी लाइफ में, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें मुझे अभी प्रैक्टिस बढ़ाने की जरूरत है, या इट हैज बिन एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लेंट्स में बी इन द पास्ट। कभी याद नहीं रहता है, कभी में भी थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस बहुत नेगेटिव होते हैं। बीइंग इन द ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, तो उसमें सिंपल है, प्रैक्टिस करनी है। सो जैसे ये लिखा हुआ है, नॉलेज इज अ ट्रेजर। हर चीज की नॉलेज है हमारे पास। नॉलेज ये किताब हमको बहुत देगी। नॉलेज से हमको पता लगेगा कि अगर हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो हमें थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ बोलना है, मे बी 100 टाइम्स लिखना भी है। ठीक है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा कैसे? जैसे अगर किसी को वेट लॉस की जरूरत है, उनको लग रहा है कि मुझे वजन घटाना है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, हेल्थ फैक्टर्स आ रहे हैं, अब उसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। नॉलेज तो पता है हमको, अगर नॉलेज बहुत अच्छे से पता है कि मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे रोज 1 घंटे की वॉक करनी है, मुझे बहुत अच्छे से पानी पीना है 3 से 4 लीटर, मुझे खाने में मिठाइयाँ नहीं खानी है, ठीक है, और मुझे खाना जल्दी खाना है, थोड़ा सा कम खाना है, स्नैकिंग बीच बीच में नहीं करनी है, बिंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, टाइम से सोना है, तो इन सब चीजों के कारण वजन कम होता है।
तो अब ये नॉलेज है, मे बी किसी ने बता भी दिया है, आपने पढ़ भी लिया है किसी किताब में, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा कम, है ना? तो इसीलिए जो चीज हमको पता है कि ये करने से ऐसा होता है, लेकिन अगर हम करेंगे ही नहीं तो लाइफ कैसे बदलेगी? तो इसीलिए बिट बाय बिट अपनी जिंदगी को हम चेंज करते हैं। और प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, जो एंड में लिखा हुआ है, इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, अगर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो जिंदगी में थोड़ा ही बदलाव होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो लाइफ ऐसी हो जाएगी दैट यू कैन हार्डली इमेजिन, ये लिखा हुआ है ना उसमें, दैट आप सोच भी नहीं सकते कि जिंदगी में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होने लग जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये वाली ऐसी इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी आई है, या फिर इस तरह से लाइक से बिजनेस बढ़ गया है जो हमने सोचा भी नहीं था उस लेवल तक। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि इसीलिए सब कुछ प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिसके लिए से दैट ब्रिंगिंग फोर्थ मैजिक फ्रॉम ग्रैटिट्यूड वर्क्स इन द सेम वे। सो फर्स्ट यू हैव टू से थैंक यू, है ना? हर चीज के लिए, कोई भी चीज रिसीव करनी है, जो पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था, that you have to give first. There is no free lunch in the world. Okay, this is a quote. There is no free lunch in the world. कोई भी चीज अगर फ्री में आ रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारी लाइफ में एग्जर्ट नहीं कर सकती है डिफरेंस। सो इसीलिए हर चीज के लिए कभी वक्त देना पड़ेगा, कभी पैसे देने पड़ते हैं, कभी टाइम देना पड़ता है, कभी अटेंशन देनी पड़ती है, कभी कुछ मेहनत जरूरी होती है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू, राइट? सो इसीलिए ये मैजिक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये चाहे कितने भी थ्योरम्स हमने पढ़े हैं, चाहे जो भी हमने पढ़ा हो, मैजिक फॉर्मूला तो यही है, अगर अपनी सपनों की दुनिया हमको क्रिएट करनी है, क्यूरेट करनी है, उसके लिए इज दैट डेलिबरेटली इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज बहुत सारी चीजें, स्पेशली जहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है, वहां पे दिल से थैंक यू निकलता नहीं है शुरू में, है ना? सो बट देन करना पड़ेगा, बिकॉज डेलिबरेटली कर करके वो हमारी आदत पड़ जाती है। हैबिट इज समथिंग दैट वी कीप रिपीटिंग, है ना? एनीथिंग दैट यू कीप रिपीटिंग बिकम्स अ हैबिट। इसीलिए अगर हम थैंक यू वर्ड रिपीट करते रहेंगे, इसमें इतनी पावर होती है इन शब्दों में कि हमारी ये जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर हमारा नेचुरली निकलेगा। फिर हमको डेलिबरेटली नहीं, शुरू शुरू में डेलिबरेटली करना पड़ेगा, हो सकता है 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। डेलिबरेटली का मतलब जबरदस्ती थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, क्योंकि फीलिंग नहीं आती है शुरू शुरू में, स्पेशली उन चीजों के लिए जो एरियाज हमारी अच्छी नहीं चल रही है या जहां पे हमने बहुत सफर किया है ना? उन चीजों के लिए थैंक यू दिल से नहीं निकलेगा। बट पॉइंट नंबर 1 यही है, डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। जितना ज्यादा आप डेलिबरेटली थिंक एंड से करोगे, उतना ही ज्यादा धीरे धीरे आप फील करना शुरू करोगे, बिकॉज आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे सपोज हेल्थ में ब्रेकडाउन है और आप बोलते हो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू दैट माई आर्म्स एंड लेग्स, दैट आई हैव माई आर्म्स एंड लेग्स विद विच आई डू सो मेनी थिंग्स, थैंक यू सो मच टू माई लंग्स, जिनसे मैं बहुत आराम से सांस लेती हूँ, थैंक यू टू माई हार्ट विच इज पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द डे, है ना? थैंक यू फॉर माई डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत अच्छे से सारा खाना डाइजेस्ट कर लेता है और मुझे उससे ताकत मिलती है। तो इस तरह से अगर हम लगातार बोलते रहते हैं अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू, आपने थैंक यू बोला था, जबरदस्ती अपने आप को पुश किया था, दिल नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को पुश किया था थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर्मूला का पॉइंट नंबर 1 ही है कि डेलिबरेटली थिंक एंड से। तो आपने थिंक भी बोला, आपने से भी किया, मतलब मुंह से भी बोला और मन में भी सोचा, तो ये आपने थैंक यू बोला। और जितना ज्यादा डेलिबरेटली आपने अगर किया भी था, उसकी वजह से आपको डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा हेल्थ में, एंड यू विल सी दैट पहले अगर आप मतलब कुछ एरियाज ठीक नहीं चल रहे थे हेल्थ के, नाउ दे आर सो मच बेटर, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स अच्छी आने लग जाएंगी, और इट विल ओनली गेट बेटर एंड बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद फिर दिल से निकलेगा ना, क्योंकि आपने जब पहले जबरदस्ती बोला था, फेक किया था, है ना, दिल से नहीं निकल रहा था, फेक किया था, उसके बाद उससे दैट अपने आप फीलिंग आ जाती है दैट वाओ माय रिपोर्ट्स हैव बिकम सो गुड एंड आई एम फीलिंग सो मच मोर बेटर, फिर आपको विश्वास होने लग जाएगा। सो थैंक यू मन से, दिल से निकलेगा, फीलिंग के साथ निकलेगा, क्योंकि आपने उसका डिफरेंस देख लिया अपनी जिंदगी में, है ना? उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, जितना ज्यादा डेलिबरेटली आप थिंक एंड फील करोगे, उतनी ही ज्यादा अबंडेंस आपको उस चीज की मिलेगी। अगर आपने डेलिबरेटली थिंक एंड से अपनी रिलेशनशिप्स को किया,
तो अबंडेंस मतलब सारे रिलेशनशिप्स कलर हो जाएंगे उस ब्यूटीफुल कलर से, एंड यू विल सी दैट व्हाट्स हैपनिंग, नए रिश्ते बनेंगे, नए लोग आपको मिलेंगे जो बहुत लाइक माइंडेड होंगे, उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, एंड दिस विल ओनली कीप गोइंग फॉरवर्ड. सो दैट्स व्हाट इट इज. सो ग्रैटिट्यूड फीलिंग के लेवल तक हमको लेके आना है, बिकॉज ये हमारी जिंदगी में जादू को एक्सिलरेट करेगी बहुत बड़े रूप में, है ना. जैसे न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जो एनर्जी आप दे रहे हो, ग्रैटिट्यूड की पावरफुल एनर्जी दे रहे हो, वो जिंदगी में वापस आपके पास घूम के आएगी. और जब वो आती है तो वो बहुत पावर और फोर्स के साथ में वापस आती है. तो अगर फोर्स के साथ हमको अपनी जिंदगी में मैजिक लेके आना है, तो उसके लिए हमको डेलिबरेटली थिंक एंड फील करना पड़ेगा. और वो फीलिंग फ्यूअल जो होता है वो उसकी आदत पड़ जाती है, और फिर हम हर चीज के लिए बहुत शुक्राना महसूस करते हैं. छोटी छोटी चीजें होती हैं. अगर कोई हमारे लिए पानी भी लेके आता है अगर आप ऑफिस में, तो आपको बहुत दिल से उसके लिए वो आता है कि थैंक यू सो मच, कि ये गरम गरम पानी मेरे लिए आया है. जबकि हो सकता है कि पहले वो चीज आपको नोटिस भी नहीं होती होगी. बहुत सारी चीजें होती है नोटिस भी नहीं होती है, बट इट जस्ट सो हैपेंस. अगर आप रोड पे भी जाओगे और आप जा रहे हो, नैरो सी रोड है, अगला सामने वाला अपनी कार बैक कर लेता है ताकि आप आगे निकल पाओ, है ना. उसके लिए भी निकलेगा, ओ माय गॉड थैंक यू सो मच दैट मैंने इसको बोला भी नहीं है और इसने अपनी कार बैक कर ली है, सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड एंड आई कैन टेक अ टर्न एट द राइट प्लेस. सो ये छोटी छोटी चीजें नोटिस होनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज हार्ट ग्रेटिट्यूड का हो गया है. और लाइक वही सांस सांस में शुक्राना वाली जो बात है, उस लेवल तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ इट इज. और जितना ज्यादा हम करेंगे, द फास्टर द लाइफ विल चेंज. ओके, इट इज ऑल अबाउट दैट. So this we have to remember, if you practice gratitude a little, your life will change a little. But we don't want a life to change a little. We want a life to change in a monumental way, right? इसलिए we will practice gratitude a lot every day. इसमें लिखा हुआ है, if you practice gratitude a lot every day. Every day means every day. ओके नहीं तो मोमेंटम खत्म हो जाता है. जैसे रोंडा बहन ने इसमें बोला भी आगे जाके कि अगर आपकी कोई दिन की प्रैक्टिस छूट जाती है, या आप 2 दिन नहीं ग्रैटिट्यूड कर पाते हो, 3 दिन पीछे जाओ. 3 दिन पीछे जाके फिर वहां से शुरू करना पड़ेगा. उसी से मोमेंटम बिल्ड होता है ना. सो इसीलिए इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लॉट एवरी डे इज द की वर्ड हियर, योर लाइफ विल चेंज ड्रामेटिकली एंड इन वेज दैट यू कैन हार्डली इमेजिन. जिंदगी बहुत बहुत मॉन्यूमेंटली चेंज होगी, और आप सोच भी नहीं सकते जिंदगी में ऐसी चीजें होने लग जाएंगी. एंड दिस इज द पावर. इसीलिए पावर बुक में रोंडा बहन ने बोला है कि लाइफ में सबसे बड़ी प्रेयर इज 2 वर्ड्स, थैंक यू. अगर आपने थैंक यू का जाप कर लिया ना, आपने प्रेयर कर लिया. वो हमारी पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, शुक्राना, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी हमको बोलना है. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रेयर ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो आज की तारीख में मौजूद है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बहुत ज्यादा होती है ना. सो यूज द वर्ड्स थैंक यू एंड आई लव यू अ लॉट in your life and you will see the difference. So अब हम इस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, द मैजिकल बुक, जो ये वाली बुक है ना. चारों ऋतु आप पढ़ो. A magical book. मुझे फिर से आवाज नहीं आ रही है. इज इट ये हमें भी आवाज नहीं आ रही है मैम. इवन वी आर नॉट हाँ गेटिंग. जी हाँ जी, एक्चुअली मैंने म्यूट कर लिया था, मैं भूल गई थी. अच्छा. Quote, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Unquote. John F. Kennedy, 1917 to 1963, 35th President of the United States. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize to revolutionize to revolutionize to revol, revolutionize to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life changing knowledge
But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted so easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and what you have received in the past, because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic wouldn't work and you wouldn't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true, and you will see the circumstances of your life magically change. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, resolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekdays, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with your you take it with you wherever you go, and then whenever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve, and you could do you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practices a week. The only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. या सो बेसिकली इट जस्ट टॉक्स अबाउट ये बुक किस तरह से डिजाइंड है। तो इसमें 28 प्रैक्टिसेस हैं जो कल से शुरू होंगी, बिकॉज टुडे विल कंप्लीट अबाउट आवर ड्रीम वाला टॉपिक, और कल से वो शुरू हो जाएंगी। रोज के असाइनमेंट्स हमको मिलते हैं, बहुत क्यूट असाइनमेंट्स होते हैं, उनको एंजॉय करना, बर्डन की तरह मत करना,
क्योंकि वो सारे हमारी एवरीडे लाइफ में फिट होते हैं। और ये प्रैक्टिसेस बहुत स्पेसिफिकली साइंटिफिकली डिजाइंड हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो ये पहले हमारी सुपरफिशियल चीजों को निकालेंगी हमारी जिंदगी से, उसके बाद ये डीप होती जाएंगी। और आखिरी की प्रैक्टिसेस तो ऐसी होंगी कि बिल्कुल जिसमें मेहनत लगेगी, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। पहली 12 प्रैक्टिसेस हमारा पास्ट, जो अभी तक की हमारी बचपन से लेके अभी तक की जो लाइफ है उसके बारे में होगी। उनको थैंक यू बोलना पास्ट के लिए, है ना। बचपन से अभी तक जो पैसा आया है, जो हेल्थ एंजॉय की है, जो रिलेशनशिप्स एंजॉय किया है और करंट हमारे पास क्या है, उनके लिए जब तक हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तब तक आगे की जिंदगी के दरवाजे नहीं खुलते हैं। सो अगर हमको आगे ब्यूटीफुल डोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द लाइफ खोलनी है, उसके लिए हमको पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए बहुत सारा थैंक यू करना पड़ेगा, जो असाइनमेंट्स में हमको बाय डिफॉल्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए बहुत अच्छे से कर लिया फर्स्ट 12 चैप्टर्स में, फिर चैप्टर नंबर 13 से लेके चैप्टर नंबर 22 तक हम अपने ड्रीम्स पे वर्क करेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, सारी वो चीजें और सारे जो रोड ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं हमारी सपनों को अचीव करने के रास्ते में, वी विल रिमूव देम वन बाय वन। जैसे हेल्थ में कुछ ऐसा इशू चल रहा है जो हमको एकदम बदलने की जरूरत है, तभी तो हम ड्रीम अचीव करेंगे अपनी, है ना। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहुत बीमार हैं और ड्रीम भी अचीव कर रहे हैं, तो हम वो बीमारी हटाएंगे रास्ते से। उसके बाद रिलेशनशिप में हो सकता है पास से कोई कांटा चुभा हुआ हो हमको, जो अभी भी दर्द दे रहा हो, तो उस कांटे को हटाएंगे। फिर इस तरह से हमको आगे बढ़ते जाना है। तो 13 से 22 चैप्टर तक हम अपनी सिर्फ फ्यूचर, अपनी ड्रीम लिस्ट पे वर्क करेंगे। और फिर 23 से लेके 28 चैप्टर तक हम अपनी जिंदगी के बाहर की जो चीजें हैं उनको थैंक यू बोलेंगे और दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे। बिकॉज 22 चैप्टर तक, या रादर आई शुड से 23 चैप्टर तक, हमारे पास इतनी पावर आ जाती है दैट हम उस पावर से लोगों को ब्लेस करना शुरू करेंगे। और जो थिंग्स आउटसाइड आवर लाइफ है, हम वो सीखेंगे कि आगे जिंदगी जीने का तरीका क्या होता है। जैसे अगर कोई गलती हो गई तो उसको कैसे आप लाइक न्यूट्रलाइज कर सकते हो, और उसमें मैजिक ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मतलब प्रोग्रेस एंड ग्रो करोगे। तो इस तरह से ये पूरा मैनुअल है जिंदगी का, ये जो 28 चैप्टर्स हैं और ये जो पूरी किताब है। इनफैक्ट इवन द कंक्लूडिंग चैप्टर्स जो है 28 चैप्टर के बाद जो एंड में सिखाया हुआ है हमको, वो पूरा, ये पूरी किताब एक लाइफ की मैनुअल है। अगर हम इसको डिसॉल्व करके पी लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसका पैटर्न स्टैब्लिश कर लेते हैं, पेनिट्रेट करके बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड हमारे हर एक सेल में, वो है ना, इम्प्रेग्नेट योर सेल्स विद ग्रैटिट्यूड। सो इम्प्रेग्नेट योर सेल्स मतलब एक एक सेल के अंदर ग्रैटिट्यूड को सैचुरेट करना। अगर उस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं तो अपने आप हमारी आगे की दुनिया, जिंदगी हमारी बहुत अच्छी हमको लगने लग जाती है। और हमको ये पता लग जाता है कि हम कितने पावरफुल क्रिएटर्स हैं। इस पर्पस के लिए ही हम इस धरती पे आए थे। जैसे कल हमने पढ़ा था ना, देयर इज ओनली वन रीजन ऑन दिस अर्थ इज टू हैव जॉय एंड ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में रहो और मस्ती मौजों में रहो, अपने आप जिंदगी के रास्ते खुलते जाएंगे, हेल्थ बेटर हो जाएगी, रिश्ते बेटर हो जाएंगे, एंड बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ आएगी हमारी जिंदगी में। सो यही दो पर्पस है लाइफ के, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। ठीक है, सो ये प्रैक्टिसेस हम डिलीजेंटली करेंगे। प्रैक्टिसेस सारी ऐसी हैं कि जो आप आराम से अपने डे में सबमर्ज कर सकते हो, उसके लिए आपको कहीं अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी 10 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, कुछ प्रैक्टिसेस पूरे दिन भर में ही मर्ज्ड हैं, तो उसमें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। कुछ प्रैक्टिसेस सुबह करने की है, कुछ प्रैक्टिसेस पूरे दिन करने की है। तो इस तरह से पता लगेगा, बट बड़े मजे आते हैं प्रैक्टिस करने में। अगर खुशी के साथ, जॉय के साथ, एक बच्चे की तरह जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत जल्दी हमारी लाइफ में क्रिएशंस भी हमको नजर आएंगे। एंड दैट्स हाउ इट इज। और इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ग्रैटिट्यूड इज पोर्टेबल। आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वहां ले जाओ। ऑफिस जा रहे हो, वहां पोर्टेबल है, ग्रैटिट्यूड वहां करना शुरू कर दो। ठीक है, किसी फ्रेंड के घर है तो वहां पे ग्रैटिट्यूड करो। मॉल में हो, शॉपिंग कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड वहां पे करो। आसमान में फ्लाई कर रहे हो, फ्लाइट में बैठे हुए हो, वहां ग्रैटिट्यूड करो। तो बहुत हाईली पोर्टेबल है ना। और जहां पे भी हो आप, वहां पे अपने डिफरेंस देखना शुरू कर दोगे। एंड दैट्स हाउ इट इज। सो after the 28 days, हाँ जी रितु। After the 28 days, once you have completed the 28 magical practices, you can use particular practices to increase the magic where or when you have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work,
or improve a relationship, or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open to is the one you attracted. So it's the perfect one to do that day. At the end of the 28 magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly use the practices over and over so that gratitude seeps into your conscious and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. सो इतने सारे एडजेक्टिव्स हमको इसमें मिल रहे हैं रेडिकल चेंज, स्पेक्टेक्युलर, so जिंदगी को तो स्पेक्टेक्युलर बनाना ही है। तो आफ्टर द 28 डेज के बारे में लिखा हुआ है, जिसके बारे में डिटेल में एंड में ऑलरेडी समझाया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि अगर अभी भी हेल्थ में कभी ब्रेकडाउन आता है तो ये प्रैक्टिस करो, रिलेशनशिप में आता है तो ये करो, वो बात की बात है। अभी हम बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिल्कुल जैसे खाली स्लेट हमको मिली हुई है, उस पे हम लिखना शुरू करेंगे और वो प्रैक्टिसेस करना शुरू करेंगे, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं यूज करेंगे अभी। और बाद में क्या करना है, जिसमें लिखा हुआ है आफ्टर द 28 डेज आप रैंडम में कोई भी पेज खोल लो, बिकॉज जो पेज खुल रहा है वो आप ही के लिए होता है, ठीक है। सो वैसे कर सकते हैं, या किसी किसी एरिया में चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो वाली प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बट वो बात की बात है। तो आइडिया कहने का ये है दैट हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीवायरिंग करनी है, ठीक है। अभी तक वायरिंग क्या थी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे बहुत रुक रुक के आते हैं, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लाइक कुछ ना कुछ। तो इस तरह की चीजें अभी प्लांटेड हैं, वायर्ड हैं ब्रेन में, क्योंकि बचपन से वही सब सुना और देखा था। उसके बाद ये अब सबकॉन्शियस माइंड की ब्यूटी ये होती है कि उसमें आप रीवायर कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन। सो ये रीवायरिंग कर रहे हैं, यानी कि रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिफिकली हम उसको ऐसे बोलते हैं, वी आर रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है वही हमको अपनी रियलिटी के फॉर्म में नजर आती है। अगर हमारी रियलिटी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो हमारी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, जो हमको नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि कहीं पे वो इन्फॉर्मेशन दबी हुई थी सबकॉन्शियस माइंड में, जो इरप्ट होके आपको आंखों के सामने बार बार दिख रही है। तो अब इसका मतलब है कि हमको रीवायर करना है उस इंफॉर्मेशन को जो अभी तक वायर्ड होके रखी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि शायद हमने बचपन में सुना था कि कोई पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ऐसे मत करो, वो मत करो, खर्चा ज्यादा मत किया करो, उन्होंने हमको प्रॉपर्टी नहीं दी। हो सकता है बड़े बुजुर्ग आसपास ऐसी बातें कर रहे हो, तो हमारे सबकॉन्शियस ने वो सारी इंफॉर्मेशन पिक कर ली, और वो हम 5-6 साल के थे तब से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रखी हुई इंफॉर्मेशन, और वो मल्टीप्लाई होती जा रही है, उसके ऊपर मिट्टियां जम गई है, लेयर होती जा रही है ना। क्योंकि उसके बाद सारी चीजें हम वैसे ही देख रहे हैं, जहां पे पैसे की कमी, जहां पे स्ट्रगल, वही सारा होता जा रहा है। अब हम बड़े हो गए, अब ये किताब हमारी जिंदगी में आई है, अब हमको वो वाला स्ट्रगल अभी भी मैनिफेस्ट हो रहा है, बिकॉज वो तो होगा ही, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो पिक्चर आप डाउनलोड करोगे आपको वही तो नजर आएगी जिंदगी में। हर बार आप लैपटॉप खोलोगे, जो पिक्चर आपने डाउनलोड करी है वो आपको दिखेगी, जो पिक्चर आपने डाउनलोड ही नहीं करी है वो दिखेगी कैसे, है ना। तो अभी हम ये वाली दूसरी मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, और अपने आप पुरानी वाली मूवी हट जाती है सबकॉन्शियस माइंड से। इसी को बोलते हैं रीवायरिंग द ब्रेन और रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। तो हम अब नई पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं, नई पिक्चर, वाओ थैंक यू फॉर माई हेल्थ, ऑल माई रिलेशनशिप्स अमेजिंग, थैंक यू वाली पिक्चर को हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो अपने आप हमारी जिंदगी में अब हमको जो चीजें दिख रही हैं, जो पिछली प्रोग्रामिंग के कारण अलग दिख रही थी, अब वो चेंज होके वैसे दिखेंगी जैसे हमने जो मूवी डाउनलोड करी है, विच इज थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, माई लाइफ इज सो इजी, ब्यूटिफुल, एफर्टलेस, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी,
You know, all my relationships are amazing. I feel so good in my body. You know, I really love it. All my days are amazing. अब ये वाली मूवी हम डाउनलोड कर रहे हैं, है ना? सो ये करेंगे, अपने आप आपकी आउटवर्ड रियलिटी चेंज होती जाएगी. सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस जो है, ये बेसिकली रीवायरिंग या रीप्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड का है, क्योंकि किस्मत इज इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड. वट एवर इज देयर एज एन इंफॉर्मेशन इन द सबकॉन्शियस माइंड, वो ही आप देखोगे आउटवर्ड रियलिटी के फॉर्म में अपनी जिंदगी में. और धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस करते करते, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप अपने पूरे दिन भर में ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करते जाओगे, वैसे वैसे लाइफ विल बिकम नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टेक्युलर. You know, spectacular is the word here. Yeah, what are your dreams? So this we have to do as an assignment today. Hanji Ritu. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen or paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or your dream job, then think about everything. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want to if what you if you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way
to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. हाँ जी, थैंक यू मैडम फॉर रीडिंग Thank सो you. मच। खूब सारा कंटेंट था आज पढ़ने के लिए एंड Thank रीडिंग you. बहुत अच्छे से। Thank तो you. आपको Thank you so much. 9.5 आउट ऑफ 10 मिले रीडिंग में। Thank you so much, ma'am. अबाउट योर ड्रीम्स नाउ। जब हम ड्रीम की बात करते हैं तो आज हमको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। हमको पहले तो क्लियर होना है बिकॉज इस जर्नी में हम अपनी ड्रीम्स को अचीव करते हैं। तो आपकी डिजायर्स जो हैं, विशेस जो हैं, इज माय वॉइस ऑडिबल? मेरे पास लगातार वो मैसेज आ रहा है। Yes, very clear. हाँ जी। Clear. सो हमको वो सारी चीजों की लिस्ट बनानी है जो हमको चाहिए और जो हमने सोचा था। ठीक है, आपको ये अपने लिए करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस 6 मंथ से कर रहे हो ऑलरेडी, लाइक ग्रैटिट्यूड जर्नी में, इफ यू बिन देयर फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, देन यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर द अदर्स। then you can do it for the others in your family, say for your children, for your spouse, for your parents, उनके लिए भी कर सकते हो। लेकिन पहले अपना कप भरना जरूरी है, तभी आप दूसरों को पिला पाओगे। अपने कप में इतना भर लो दैट इतनी पावर अटेन कर लो दैट आप दूसरों के लिए कर पाओ कि दूसरों के लिए आप चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बनो। तो पहले अपने आप को एम्पावर। अगर हम अभी खुद ही लुढ़कते फुड़कते रहते हैं या कभी फॉल डाउन होते हैं, फिर 3 दिन हमें लगता है क्या फायदा इन सेशंस करने का, या प्रायोरिटी दूसरी हो जाती है, तो फिर ऐसे में आप दूसरों को एम्पावर नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि खुद ने ही अभी प्रायोरिटी अपने आप को ही ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है? मेंटली, इमोशनली ग्रैटिट्यूड को अच्छे से इम्प्रेग्नेट करो अपनी जिंदगी के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो। उसके बाद हम दूसरों के लिए लिखेंगे। तो अगर आप कुछ टाइम से कर रहे हो तो आराम से लिखो अब और लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन जैसे तो इसको डिवाइड कर लो, जैसे एरियाज में क्या हुआ है ना, हेल्थ के सेक्टर में आपको किस तरह का, क्या आपका गोल है, मनी में क्या है, कितना पैसा चाहिए आपको हर महीने। ये मत बताना यूनिवर्स को कि आपको कहाँ से पैसा चाहिए, बस ये बता देना सपोज आपको 3 लाख रुपए हर महीने चाहिए, आपको लग रहा है कि इतने में मेरा बहुत अच्छा कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी, तो आपको वैसे लिखना होगा, टू रिसीव 3 लाख रुपीज एवरी मंथ विथ ईज एंड जॉय। ओके, वेयर इवनिंग्स आर फ्री। अगर आपको ऐसा मतलब वर्क डोमेन, अगर ऐसा कोई चाहिए जहां आपकी शामें आप खाली हो और आप घर पे हो, इस तरह का कोई काम, और ऐसे पैसे रिसीव करने हैं, आप स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हो। अगर आपको अपना घर खरीदना है तो हो सकता है अभी आपके पास 50,000 रुपए भी नहीं अकाउंट में, लेकिन आप सपने में लिख रहे हो कि मुझे टू बाय माई ड्रीम हाउस, जिसमें 3 कमरे हैं बड़े बड़े, जिसमें सुबह सुबह सनलाइट आती है, बहुत अच्छी सी ओपन किचन है, कलरफुल सी किचन है, बाथरूम्स बहुत अच्छे हैं, कोल्ड एंड हॉट रनिंग वाटर के बहुत अच्छे फॉसेट्स हैं, उस घर में रह के मजा आता है। सो एक गेस्ट रूम बनाओगे, एक मतलब 2 रूम्स आप अपनी फैमिली के लिए यूज करोगे। इस तरह से पूरा डिटेलिंग आप लिख सकते हो उसको, कौन सी सिटी में आपको चाहिए, क्या मतलब जो भी है, आप कैसे पैसे आएंगे वो घर खरीदने के लिए, प्लीज इसमें अपना दिमाग मत लगाना। बिकॉज बहुत क्लियरली ये पिछले भी टॉपिक में लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है दैट डोंट गेट इनटू हाउ, just think about that why do you want it and what do you want, what and why पे फोकस करो। बिल्कुल भी हाउ में नहीं जाना है, बिकॉज हाउ का काम यूनिवर्स का होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में रहते हो, अपने आप सारी वो चीजें मैग्नेटाइज करने लग जाते हो अपनी तरफ, जो आपको वो घर ला के देगी, जो आपको वो रिलेशनशिप ला के देगी, है ना? और अगर जिन लोगों को पार्टनर्स ढूंढने हैं अपने लाइफ में, लाइक यू वांट अ ब्यूटीफुल पार्टनर, सो उनके लिए जैसे रॉन्डा बर्न ने समझाया हुआ है कि किस तरह का पार्टनर चाहिए, क्या उसका हाइट वेट चाहिए, क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए, वो सक्सेसफुल होना चाहिए, कैसे उसके बाल, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो इसमें,
ठीक है, ड्रीम लिस्ट में। एंड देर इज नथिंग लाइक यूर बीइंग ग्रीडी, देर इज नथिंग लाइक दैट। अगर आपको ये लगता है कि मैं मटेरियल थिंग्स इतने ज्यादा मांग रही हूँ और मुझे एलवी का बैग चाहिए और मुझे उसके सनग्लासेस चाहिए, प्लीज गो अहेड। ठीक है, द वे टू निर्वाणा, द वे टू सैल्वेशन इज थ्रू गेटिंग ऑल दीज मटीरियल, टू हैविंग दीज मटीरियल डिजायर्स फुलफिल्ड, है ना। जैसे हमारे चक्रास भी वैसे ही बने हुए हैं, जैसे 7 चक्रास होते हैं, तो नीचे के जो 3 चक्रास हैं वो सारे मनी, नेम, फेम, कार, बंगला, गाड़ी, वो वैसे वाले ही होते हैं। सो यू हैव टू अंडरगो दैट, यू नो, टू बी एबल टू अचीव सैल्वेशन एंड निर्वाणा। उस लेवल में जब हम पहुंच जाते हैं, जब आपने सारे मटेरियल चीजों को बहुत अच्छे से भोग लिया, एंजॉय कर लिया, उसके बाद भी मटेरियल चीजें आपके पास रहेंगी, लेकिन फिर उनका पर्पस चेंज हो जाता है। फिर ये होता है कि मुझे क्यों फेम चाहिए, ताकि मैं अपने फेम को यूज करूं लोगों की जिंदगी को एम्पावर करने के लिए, है ना। तो वो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। पहले आपको बस फेमस होना था क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस लेना अच्छा लग रहा था कि लोग मेरी वाहवाही करे, मुझे बड़ा अच्छा लगे, विच इज ओके, एब्सोल्युटली ओके। जब तक ये वाले मटेरियल डिजायर्स, नेम, फेम, ये सब नहीं होंगे, तब तक आगे की चीजें आती भी नहीं है, क्योंकि इसी रास्ते से गुजर के आपको निर्वाणा की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो फिर ऊपर वाले जो वैसे हमारे चक्रास होते हैं, विच इज ऑफ कोर्स द हार्ट चक्रा एंड देन यू नो विशुद्धि, तो वो सब इसीलिए होते हैं कि ठीक है, मैंने इतनी नॉलेज गेन की, मुझे बहुत फेम मिली, अब मैं अपने गले को, अपनी आवाज को यूज कर रही हूँ लोगों को एम्पावर करने के लिए और इस दुनिया को, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो अपने आप वो वाला चेंज आता जाता है, एफर्टलेस होता है ये। तो ये जर्नी होती है जिंदगी की, इसीलिए खूब अच्छे से आप मटेरियल थिंग्स को एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जो लग रहा है कि आई एम बीइंग ग्रीडी, प्लीज बी, बिकॉज इस जर्नी में अगर आपको कोई भी चीज कैसी भी चाहिए, आपको खूब इंजॉय, बड़े बड़े घर चाहिए, बंगले चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। मेरे सारे मेंटर्स ने मुझे ये सिखाया है कि कभी हेजिटेट मत करो कि अगर आपको 7 स्टार होटल में रुकना है, जिसका एक रात का 2 लाख रुपए जिसका वो होता है टैरिफ, उसमें जाके रुको, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप वो सब नहीं करोगे, तब तक वो सिचुएशन आती नहीं है कि आप दे पाओ, है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छे से अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, बिल्कुल गिल्ट मत रखना इसमें कि मैं बहुत ज्यादा अपने लिए मांग रही हूँ। यही तो है मकसद हमारा, प्लीज मांगो। ये सारी यूनिवर्स में जो चीजें हैं, ये हम ही को एंजॉय करने के लिए है, धरती माँ की देन है। अगर आप एंजॉय भी कर रहे हो, अगर आप 7 स्टार में भी रहना चाहते हो, अगर आपको है दैट आई वांट टू स्टे इन अटलांटिस होटल इन दुबई, प्लीज गो अहेड एंड राइट इट इन योर ड्रीम लिस्ट। आपको किसी कंट्री में लग्जूरियस क्रूज पे जाना है और आपको लगता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको डिजायर है बहुत ज्यादा कि मुझे नहीं जाना, तो है ही मुझे एक बार, ठीक है, तो प्लीज आप लिखो उसको, दैट गो ऑन अ लग्जूरी क्रूज फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। या अगर कोई स्पेसिफिक क्रूज आपके दिमाग में है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको पैसे हर महीने जैसे चाहिए, या फिर जो भी चीज, जिस भी तरह से बिजनेस का टर्नओवर आपको बहुत बढ़ाना है, आपको यू नो लाइक कार चाहिए विच इज कॉस्टिंग यू 1 करोड़ और 1.5 करोड़, प्लीज उसको लिख लो। बट यू शुड वांट इट, यू नो लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि लिख के देखते हैं क्या पता आई जाए, ऐसे नहीं। यू शुड रियली वांट इट, है ना। अगर आपको अपने बच्चों की एडुकेशन के लिए, आपको बाहर किसी कंट्री में भेजना है, उनको एडुकेशन के लिए पैसे, तो पैसे तो वो आप ही की ड्रीम लिस्ट में आएंगे ना, बच्चा थोड़ी कमाएगा, क्योंकि बच्चा तो अभी फर्स्ट ईयर में जा रहा है या स्कूलिंग कर रहा है बाहर किसी कंट्री में, तो उसके पैसे आप ही की डिजायर लिस्ट में आएंगे कि टू रिसीव सो मच मनी टू सेंड माई चाइल्ड टू सो एंड सो यूनिवर्सिटी फॉर द एडुकेशन। सो इस तरह से, एंड देन जस्ट राइट इट, बहुत अच्छे से आप लिखो उसमें, एंड देन नाउ डू द असाइनमेंट्स प्रॉपरली, और पूरे दिन अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में रखने की कोशिश करो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड में ये मैजिकल पावर होती है दैट आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ आप पहुंच गए। पर ये एनर्जी ही ऐसी होती है विच विल टेक यू ऑन द जर्नी, दैट दिस इज अ, इसीलिए लिखा हुआ है ना, एंड यू आर रेडी टू बिगिन द मोस्ट एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एडवेंचर यू हैव एवर बीन ऑन। चाहे आपकी जिंदगी में जो भी है ना, थ्रिलिंग एडवेंचर यू एवर बीन ऑन, बहुत थ्रिलिंग, बहुत एक्साइटिंग एडवेंचर होता है, मजा आता है करना। और जब गिरते हैं तो ये भी पता होता है टूल क्या है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी होती है इन चैप्टर्स में, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका सपोज चैप्टर नंबर 9 मिस हो गया, तो आपको वापस 6 पे जाना पड़ेगा, फिर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए कोशिश करके करना, अपनी किस्मत बदलना आप ही के हाथ में है, कोई और तो नहीं आके बदलेगा। सो अपनी कलम से अपनी किस्मत लिखो, और वो इसी तरीके से होगा जब थोड़ा सा डिसिप्लिन भी लाइफ में लाना पड़ेगा, क्योंकि सेशंस के टाइम 6 से 7 ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन हमने यूट्यूब पे भी शुरू कर ही दिया है।
तो कभी बहुत ही मतलब वैसे सिचुएशन आ जाती है कि आप उठ ही नहीं पाए हो या आपकी फ्लाइट है, तो आप बाद में मतलब यू कैन लिसन ऑन द यूट्यूब इंटेंटली, थोड़ी हाई स्पीड पे लगा के आप सुन सकते हो और फिर असाइनमेंट करो, ठीक है। या फिर अपने आप किताब पढ़ लो, अगर आपको लगता है कि आपकी समझ बहुत अच्छी से हो गई है तो फिर आपको मेरा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किताब से, किताब का पीडीएफ ऑलरेडी हमारे पास है, ग्रुप में भी डाला हुआ है, तो आप पीडीएफ से किताब से आप वो असाइनमेंट पढ़ के अच्छे से दिल से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द मैजिक बुक, और कल से हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, विच इज काउंट माई ब्लेसिंग्स। And now we go to the hero book, which is also written by Rhonda Byrne, the same author. And उसमें हम इन 12 famous लोग जो literally like they have become brands in their names are brands, हम उनका पूरी जर्नी पढ़ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं उन्होंने क्या क्या चीजें करी वहां तक पहुंचने के लिए, और उनको किस तरह के ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा, और उन्होंने क्या टूल्स क्या टूल्स यूज करके ओवरकम किया अपनी परेशानियों को। And that's what we are studying. So Mohit ji will be reading for us. हाँ जी मोहित जी, please start. Liz Murray. Liz Murray. I would wake up sometimes sleeping on my friend's floor. I had to get to the early morning class that I signed up for before school starts, and I needed something to motivate me to get there. So I would see this runner in my mind. I guess it was supposed to be me, but I only ever saw her back. And she was running down a track by herself. I saw these physical hurdles, and she would jump the hurdles and jump the hurdles. I would lie there picturing this runner so I could get myself up to go. I would say, okay, you are tired, that's a hurdle. Your work, you did it last night. You jumped a hurdle, taking the train right down there with no breakfast, you are starving. Hurdle, hurdle, hurdle. And I would see her jumping the hurdles with her sinew back and sweating under the sun. So every time something got in my way, what if it was just another hurdle? Because the hurdle's not separate from the track. A hurdle is the part of the track. And it wouldn't be an indication that I was off my track. When things were in the way, that was just part of the course. And eventually, if I jumped those hurdles enough, I would reach my finish line. सो इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मेटाफोरिकली दिया हुआ लिज मुरे ने। वो कहती हैं कि उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जमीन पे सोती थी। तो उसके बाद उन्होंने अर्ली मॉर्निंग क्लासेस अपनी शुरू की, पढ़ाई लिखाई शुरू की जैसे तैसे, है ना। फिर वो कहती हैं कि जब वो अपनी फ्रेंड के घर पे जब खिड़की पे बैठी होती थी, तो वो देखती थी कि एक बंदी रन कर रही होती थी, शी वॉज अ रनर। सो रोज रन कर रही होती थी, उसके रास्ते में खूब हर्डल्स आते थे, तो उनको ओवरकम करके वो आगे बढ़ती जाती थी। ऐसा नहीं था कि कोई हर्डल आ गया तो वो रुक गई, जैसे कोई साइकिल वाला सामने आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो रुक गई उसकी वजह से, वो उस हर्डल को क्रॉस करके वापस भागती रहती थी। तो उन्होंने उस चीज को, ये जो रनर भागती थी रोज, जो खिड़की से ये सुबह सुबह देखती थी, उन्होंने उसको अपना इंस्पिरेशन बना लिया, ठीक है, कि मैं भी जिंदगी में इस तरह के हर्डल्स जितने भी आएंगे, जितनी भी रुकावटें आएंगी, उनको मैं पार करूंगी। तो उन्होंने फिर इसको मेटाफोरिकली अप्लाई करना शुरू किया अपनी जिंदगी में। और जब भी कोई चीज ऐसी होती थी, जैसे उनकी नींद नहीं खुली अगर, ठीक है, तो वो कहती थी अरे इट्स अ हर्डल, इसको मुझे क्रॉस करके अपना भागना कंटिन्यू रखना है। अच्छा अब ये हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ओ इट्स अ हर्डल, नहीं मुझे इसको ठीक करके मुझे आगे ये करना है। तो इस तरह उन्होंने अपने पूरे दिन भर में जो जो चीजें होती थी, जहां उनको लगता था कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, और जो उनके मन में भी अगर कुछ लेजीनेस आती थी, जो इन्होंने लिखा है कि मैं टायर्ड फील करती थी कभी कभी, है ना, तो मुझे लगता था ओ इट्स दैट हर्डल हर्डल हर्डल। फिर वो उस लड़की को याद करती थी जो रोज सुबह भागती हुई उनको खिड़की से नजर आती थी, कि किस तरह वो हर्डल को क्रॉस कर करके आगे भागती जाती थी, और नियम से भागती थी वो। तो वो लड़की इनकी इंस्पिरेशन बन गई। तो हमें नहीं पता होता हम किसके इंस्पिरेशन बन रहे हैं, है ना। हम सब किसी न किसी के, जैसे आप लोग सब बोलते हो ना कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से हमको अपना वो आइडिया मिलता है, कि किसी का एक्सपीरियंस सुना तो हमको पता नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हम हो सकता है कि 10 लोगों को हमने बहुत ज्यादा उठा के शेकअप कर दिया है, जो जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। सो दैट इज हाउ इट इज। सो ये लिज मुरे की कहानी है, जो कहती हैं कि कोई बात नहीं, हर्डल आया है, ऑफ द ट्रैक तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी और मैं रुकूंगी नहीं, उस लड़की की तरह मुझे आगे भागते रहना है।
So when things were in the way, that was just part of the course, and eventually if I jumped those hurdles enough, I would reach my finish line. तो जो भी टास्क होता था, जो भी चीज उनको अकम्प्लिश करना होता था, कभी यूनिवर्सिटी जाने का मन नहीं कर रहा, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो नहीं हो रहा, सारे ऑब्स्टिकल्स को वो इस तरह से पार करती थी कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में फिनिश लाइन तक जाना ही है, उस लड़की की तरह जो उनको खिड़की से दिखती थी, और वो सारे हर्डल्स को पास करके रोज रोज रन करती थी। हाँ जी। Michael Acton Smith. I didn't know how, but in the darkest times, because I so believed in this product, I knew I was going to crack it. If you stay in it and you ask the universe, it delivers. या अगर आपको जेन्युइनली कोई चीज चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अगर वो एटीट्यूड होता है, तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट इट, आप बोलो यूनिवर्स, दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई वांट इट फास्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, थैंक यू सो मच। अगर आपने यूनिवर्स से परेशान होने की बजाय कि कैसे होगा, क्या करो, ऐसे अगर नहीं आया तो क्या हो गया, ये होगा, डोंट थिंक ऑल दैट, just tell universe this is how it is. Like I always tell the universe, no, I told you that मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी हेल्थ में रखना, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है, तो I don't want to just be, I cannot see them suffer in any way. I want to see them enjoy the best of health, keep them healthy, and so that I can do all the things that I want to do. तो यूनिवर्स से मांगो, है ना। अगर आपको पैसे चाहिए, आपको किसी ट्रिप पे जाना, आपको बहुत मन कर रहा है कि मुझे उस बीच पे जाना है, उस आइलैंड पे जाना है, आई वांट टू ट्रैवल एंड आई वांट सम ब्रेक इन माय लाइफ, आप यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स, दिस इज व्हाई आई रियली वांट टू टेक अ ब्रेक, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, आई वांट टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर, आई वांट टू सी द माउंटेन्स, आई वांट टू सी द बीचेस, आई वांट टू सी द ब्यूटीफुल सी ओशन एंड एंजॉय, लाइक, so can you give me so much of money and can you plan this trip for me to so and so place? You ask the universe, it delivers. That is what it is. I know हम थोड़ा वो हो रहे हैं over short time, but then yeah, let's read John Paul DeJoria. John Paul DeJoria. A hindrance to anyone being successful is when there is rejection, they gave up. One of the keys to becoming successful at anything is to be prepared for a lot of rejection and don't let it affect you. A lot of people aren't prepared when they start something and they figure they are a failure and it stops them. If all these rejections didn't happen, I could never have started John Paul Mitchell Systems. Yeah, so this is what John Paul DeJoria says कि rejections आ सकते हैं, हो सकता है बैंक लोन नहीं अप्रूव हो रहा है, हो सकता है कि स्टाफ आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, हो सकता है जिस पार्टनर के साथ आपने बिजनेस शुरू किया था वो आपका साथ छोड़ के चला जाए बीच में, हो सकता है कभी डाउनफॉल आए पैसे के मामले में, बिजनेस में थोड़ा सा लो हिट कर जाए। सो इस तरह की चीजें होती रहेंगी, लेकिन अगर आपको अल्टीमेट गोल, आस्क द यूनिवर्स फॉर हेल्प, अगर आपने यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया, अपना मेंटोर, अपना गाइड, अपना जो भी, ठीक है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। So that is how. So rejections, all these things will keep coming and going. We don't have to worry. And that is what will establish, a solid business. Then tomorrow onwards, we will start from a fresh new topic, which is called failures and mistakes. So which is okay. ये चीज I think हमने मैजिक बुक में बहुत पढ़ी है कि अगर फेलियर हो रहा है तो क्या करना चाहिए, मिस्टेक अगर हो गई तो मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग्स, बिकॉज हर मिस्टेक हमको कुछ सिखाने के लिए होती है, बिकॉज हम परफेक्ट बॉर्न तो हुए नहीं है। So that we'll study. And thank you so much, Mohit ji, for reading for us so beautifully. Thank you. Thank you. Yeah, that is all is from our desk today. Anyone wants to add or share, please do. Hi, Diti. Hello. Hi. Hello, everyone. मैंने ना एक कुछ पढ़ा था तो that I wanted to share. Maybe किसी और ने भी पढ़ा. It's like red car theory, if you have heard about it. Red car theory. Yeah, सौम्या ने बोला. It's like कि किसी कोई podcast, किसी interview में, तो वो गर्ल पूछती है, have you heard about red car theory? कि तो बोलते कि what is red car theory? It's like कि have you seen red car? तो he said, तो वो बोलते कि नहीं, मैंने कभी notice नहीं किया. तो she said, opportunities जो होती है वो red cars की तरह ही होती है, गुजरती रहती है, but you have to notice them. So we all have to notice the red car in our road of life, and yeah, to grab them. Ma'am, Yeah. just can I add with yours? Yeah. So So she says कि
when you were coming to the studio, did you notice any red cars? And he says, yeah, maybe, probably I might have. And then she says, if I told you for every red car you notice, if I give you $50, would you think you would have noticed? He said, 100% I would have noticed all the cars that would have passed, so that, so that's how she says when the opportunities are going. That's what. Yeah. So we are Continue. full of red cars during the day. So I think we can grab those red cars and at least say thank you to them and notice every little thing that is a blessing to our life, isn't it? I mean, like every little thing, there are lots of red cars we come across. I mean, in terms of opportunity, क्या thank you बोलोगे तो opportunity door पे knock कर देती है. So Yeah, it's yeah, for like that that. $50 is actually for which I understood in this journey. For me, $50 is like saying thank you. Yeah. हर अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू बोलने से वो अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होके आती रहती है एंड यू हैव टू बी इन दिस जर्नी, जैसे दीप्ति भी कई बार बोलती हैं कि यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अलर्ट, ऑल्दो ग्रैटिट्यूड itself make you very alert. So वो जो magic क्यों है वो it like works every day who are in this journey. So yeah, opportunities are, you have to grab It them. does, definitely. I mean, like everything, like noticing small things. पहले मैं अपनी कार को thank you बोलती थी that for taking me, from place A to B and being a luxury in my life and, giving me so much comfort. In summers, it gives me a very powerful AC. In winters, it gives me a very powerful heater. So वो सारा. अब जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं steering wheel के लिए, accelerator के लिए, brake के लिए, music system के लिए, speakers के लिए, इंडिकेटर के लिए, रिवर्स गियर के लिए, इन सब के लिए भी थैंक यू. सो डेफिनेटली द डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड इसी तरीके से बढ़ती है धीरे धीरे जब आप ये चीजें नोटिस करो कि ये चीजें भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना. कभी गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाता है तो यू गॉन इन, यू कांट इवन ड्राइव, यू कांट इवन टेक आउट योर कार आउट ऑफ द पार्किंग. So even that brake is so important. The fuel that we're putting in, मतलब it's a liquid, उसी को thank you बोल दो. एनर्जी के थ्रू ये पहुंच जाएगा उस पेट्रोल, डीजल या जो भी गैस भरा है हमने अपने कार में एज अ फ्यूल उसके पास. एंड सो या आई मीन लाइक द विजन, द इनसाइड गोज फार मोर डीपर नाउ, which is definitely changing our life because again वो जो डाउनलोडेड मूवीज चेंज हो रही हैं तो हमको वो रिप्लेस दिखेंगे डेफिनेटली जिंदगी में. सो या we can use the connotation of the red car in multiple ways. Yeah. So thank you so much, and then we'll meet tomorrow with chapter number 1, which is Count My Blessings in the Magic Book, and Hero continues again with mistakes and failures. So ये भी बहुत अच्छा topic है because हम सब in pursuit of excellence में हैं. I love this quote called "In pursuit of excellence." So in pursuit of excellence, there'll be multiple things we will be learning. From our own experiences and from others' experiences. किसी ने कुछ बोला तो हमें लगेगा हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैंने ऐसे नहीं किया था पिछली बार, ठीक है. एंड इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस अपनी जिंदगी में इसको हमें अपनी जिंदगी की टैगलाइन बनानी है. In pursuit of excellence. So continue to excel, continue to learn, continue to grow and flourish and thrive and learn and apply. Do the things, break old patterns and establish new patterns. फिर वो पैटर्न को ब्रेक करके अपने आप को एक्सपैंड करो. Getting out of the comfort zone. All that is in pursuit of excellence. So if it is Ritu Khanna, नीचे जो टैगलाइन होती है ना, like Nike का होता है ना, just do it. So उस तरह से Ritu Khanna in pursuit of excellence. It's Deepti in pursuit of excellence. So it's Sunaina Sindwani in pursuit of excellence. That's a tagline. And when that becomes a tagline, that gets attached to a name, and there'll be no choice left with the universe to just give us excellence in everything that we be, do, and have. So that is what it is about in tomorrow. So very excited to start, new chapters in both of them. So thank you so much and have a beautiful, magical day. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Bye. Thank you so